सारे इजाज साहब हैं हमारे चेयरमैन आईपी गुजरात सेंटर रिक्वेस्ट करते हैं एक टॉपिक है कंपैरेटिव ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग बायलेटरल contract model and its implementation roadmap for Pakistan. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इजाज साहब प्लीज For the recitation of Holy Ground, I request my honorable chairman, Anjir Masud Khan, please. Global councils हो, वर्कर्स हो, या कोई प्रोग्राम हो, उनकी जरूरी है एटमॉस्फेयर हमारा है, वो हम क्या मुझे कहता है तो तिलावत में गुज़श्ता 8-9 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह एक एहसास भी है और सवाब भी है, लेकिन हम सब मुसलमान हैं पाकिस्तान में 95% मुसलमान 5% तो हम मुसलमान एक बात अलग है कि हम इसमें बच्चे लेकिन पुराने मजीद की तालीमात में जो अभी मुझे किताब मुझे उसमें अमल करना एक ही है लेकिन उसको पढ़ना अलग नहीं पुराने मजीद तिलावत आप समझते हैं इंडिपेंडेंट एक इबादत है सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ना बेशक आप तर्जुमा पढ़े या ना पढ़े तर्जुमा तो वो कहते हैं सोने के साथ है और तर्जुमे के साथ ही पढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसकी इबादत को पढ़ना सवाब नहीं है और बेदर्द नहीं है आप बेसमझे पढ़े आपको दिल को सुकून आएगा आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा सवाब जैसा मैं आपके सब कहता हूँ भाई प्रोग्राम आपने शुरू कराया और आपसे मैं मैं करता हूँ ये तो चीजें बिगड़ है लेकिन अल्लाह के नाम से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم أنكم تهتدون صدقكم इसका मैं तफसील तर्जुमा ध्यान कर देता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से करते हैं निहायत मेहरबान और ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरते रहो ऐसा करने का मुझसे हम और खबरदार इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मौत ना आने पाए तब तक तुम मुसलमान ना हो और वो वक्त याद करो अल्लाह की नेमतें याद करो जब तुम एक दूसरे से करते थे लेकिन अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तुम पर मेहरबानी की कि तुमको भाई भाई बना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो फिर अपनी हिम्मत तुम जहन्नुम के गड्ढे के किनारे खड़े थे अल्लाह ने तुमको उससे बचाया और तुम्हें नेक राह दिखाई आज तक तुम ताकतून ताकि तुम हिदायत करो सलाम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद इजाज चेयरमैन आईपी गुजरात सेंटर सीओ एंड हेड कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुदा है सबके जमीन के बरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है
First of all, I am very thankful to IEP Gujarat Center and Lahore Center. And I especially thanks to IEP headquarters Lahore for arrange this lecture. Today, my lecture topic is very hard in electricity market. Competitive trading of electricity by using bilateral contract market model and its implementation roadmap for Pakistan. First of all, I introduce IEP. First of all, I introduce myself also. Metric with science first position in metric, DAE, electrical, BSc, electrical engineering, MBA, specialization in information technology, MS electrical engineering, and my job career starts with STO, GAPCO, first position in recovery in year 2002-3. Then I joined Habib Rafiq Private Limited as Deputy Construction Manager and worked Habib Rafiq for different projects from 2006 to 2012. Then I joined Metrocon Private Limited as Construction Manager from 2012 to 2016. Then I joined MREC Private Limited as Project Manager and worked for 2 years. Then I Institution of Engineers Pakistan was founded with the blessing of Father of Nation Qaeda Muhammad Ali Jinnah in 1948 with its headquarters at Dhaka. In 1972, the headquarters was shifted to Lahore. The name Institution of Engineers Pakistan in line with international trends in the 22 AGM held in 1979. IEP has its own constitution according to which its affairs are managed by its elected president, vice president, and secretary general at the headquarters level. The central meeting is elected for 3-year term and has the powers of governing body. Now I introduce my firm. My firm name is N8 Consulting Engineering Services, Gujranwala, inspired by the Central Asia and South Asian countries whose name ends with N, such as Pakistan, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, etc. It deals with small and medium scale housing societies, underground and overhead electrification system. It prepares design book, preparation, approval and construction. It also deals with single and three-phase electrical wiring design books for houses, commercial plazas and industries. It also deals with CCTV camera with complete security system, and it also deals with standby and building management system installations. Now I start my lecture. First of all, types of market. There are 3 types of markets, one of which is self-dispatch. Self-dispatch market has its own organizational structures and they dispatch the electricity according to their rules. Second one is centralized dispatch market. The Pakistan is also working before decentralization, and its working is also on centralized market. Then hybrid dispatch. Hybrid dispatch market is combination of both self-dispatch and central dispatch. Objectives for competitive electricity market development.
The proposed competitive electricity market design will be based on the following main objectives: improve efficiency arising from competition for the market, such as new capacity procurement and in the market. Second one is enhance electricity sector security of supply, generation adequacy to develop electricity sector sustainability in the short, medium and long term. Create the conditions to attract investments based on credit cover provided by market participants without the need of government providing subsidies guarantees. Create the conditions for a fair allocation of risk and benefits, sharing between investors, sellers, and buyers and consumers. Level the playing field, removing conflicts of interest to facilitate entry of new investors and participation of private players, including bulk power customers. तो इसका जो है ना पैसे ये है कि इसमें जो है ना जो मार्केट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें आपको पता है कि कंपटीशन जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ सप्लाई जो है ना वो रोज बरोज जो है ना वो बढ़ रहा है, और उसको काम करने के लिए हमें जो है ना जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है उसको जो है ना ये कंपीटिटिव बेसिस पे जो है ना वो लेके आना पड़ेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो फायदा है ओपन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो इसमें आपके पास एक टूल होगा जिस तरह जो है ना यूरोप के अंदर जो है ना 26 कंट्रीज हैं उनका पावर टूल है, उसके अंदर जो है ना जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर मार्केट्स के अंदर जो है ना डेली रेट्स या जो है ना शेयर्स के रेट्स अप डाउन हो रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के रेट्स भी जो है ना वो ओपन होंगे और हर एक की जो है ना वो असेस में होंगे, और कंपटीशन की वजह से जो है ना कंज्यूमर के एंड पे जो है ना उसको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो काफी सस्ती होगी। नेक्स्ट general principle, the design builds on existing conditions and type of take or pay PPAs in Pakistan. PPA stands for Power Purchase Agreements. Take into consideration relevant international experience, especially inflexible PPAs, significant demand growth, and lack of timely payment culture. Remove existing conflict of interest. Market operator cannot have commercial interest in the market. Transaction in the new market based on bilateral contracts for old and new PPAs. Promote efficiency, economic dispatch. जो है ना इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपकी जो डिस्पैच होगी वो इकोनॉमिकल जो है ना वो बाय। नेक्स्ट जो है ना प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, बैंकेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इसमें जो है ना बैंक जो है ना इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है ना वो गारंटी करेगा। इंश्योर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो अवेलेबिलिटी होगी वो जो है ना वो मैक्सिमम होगी। प्रोडक्ट्स ट्रेडेड इन द मार्केट, एनर्जी, इसमें our electric consumption, firm capacity, security of supply, mechanisms to manage the transition. इसमें next है avoid wholesale price jump during the transition, ensure future evolution. तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये ओपन मार्केट होगी और इसमें जो है ना बायर और सेलर जो है ना वो एक दूसरे के फेस टू फेस होंगे, और उसमें जो है ना कंपटीशन की वजह से जो है ना जो भी नया कंपटीटर मार्केट में आएगा उसकी ये कोशिश होगी कि वो जो है ना जो
पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके तहत जो सप्लाइंग कैपेसिटी है उसको अचीव करने के लिए वो अपना रेट जो है ना वो मिनिमाइज करे। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मॉडल, तो इसमें जो है ना सबसे पहले आप देखें एग्जिस्टिंग पीपीएस बिटवीन IPPs and NTDC. NTDC stands for National Transmission and Dispatch Company and CPPS stands for Central Power Purchase Authority. G stands for guarantee on behalf of DISCOs. तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो है ना जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है ये डिसेंट्रलाइज हो गई है और इसमें मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज हैं उनको जो है ना वो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। Will be converted into bilateral contracts between each IPP and all DISCOs. तो इसमें जितने भी आपके IPPs होंगे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और जो आपकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका आपस में जो है ना पावर परचेज एग्रीमेंट होगा कंपनीज लेवल। बैलेंसिंग मैकेनिज्म टू सेटल कॉन्ट्रैक्ट डेविएशंस, तो इसके अंदर एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म भी जो है ना वो रखा गया है ताकि अगर किसी किस्म की कोई डेविएशन इसमें जो है ना वो जनरेट होती है तो उसको काफ किया जाए। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो ये एक जो है ना ये डायग्राम आपके साथ जो है ना ये शेयर की गई है। इसमें एनटीडीसी जो है ना ये नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है जो होल ट्रांसमिशन सेक्टर को जो है ना जो डील कर रही है और इसमें डिस्पोज भी जो है ना इसके अलावा जो है ना जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स होंगे वो जो भी आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होगा उसके बिटवीन और डिस्पोज के बिटवीन होंगे और इनमें सीपीपीए और एनटीडीसी जो है ना वो इंटरमीडिएटर के तौर पे अपना रोल जो है ना वो अदा करेंगे और इसमें जो है ना बैलेंसिंग मैकेनिज्म भी होगा अगर किसी किस्म की कोई डेविएशन जो है ना वो जनरेट होगी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो है ना जो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें सबसे पहले जनरेटर्स हैं या जनरेशन कंपनीज हैं, उसके बाद डिस्पोज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद हैं बल्क पावर कंज्यूमर्स हैं जो बल्क लेवल पे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उसके बाद सप्लायर्स हैं तो सप्लायर्स जो है ना वो बाई भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि नेट मीटरिंग जो है ना वो भी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है, तो नेट मीटरिंग के थ्रू जो है ना आप सोलर या किसी और सोर्स से पावर जनरेट करके ना सिर्फ अपनी डिमांड को आप पूरी करेंगे बल्कि जो आपके पास एक्सेस पावर होगी वो आप जो आपके कंसर्न एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी उसको भी आप सेल कर सकेंगे। होलसेलर इफ बाई एंड सेल इन द मार्केट, रिटेलर्स इफ बाई इन द मार्केट टू रीसेल टू अटेंड कंज्यूमर्स। इसके अलावा इसमें सबसे जो अच्छा है इसमें इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जिसको हम नेट मीटरिंग कहते हैं कि आप जो है ना एनर्जी को बाटा से या किसी भी जो आपकी कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी उससे आप इंपोर्ट भी कर सकेंगे और उसको भी आप जो है ना एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। सर्विस प्रोवाइडर, नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर्स आर मार्केट ऑपरेटर्स, सिस्टम ऑपरेटर्स, ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स, मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, प्लानर एंड इंडिपेंडेंट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान में ट्रांसमिशन के रेफरेंस से देखा जाए तो एनटीपीसी जो है ना वो ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स होगा। सिस्टम ऑपरेटर्स जो है ना वो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एनटीसीसी जो है ना वो पावर के होल सिस्टम को जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद आपके प्लानर्स में जो है ना सीपीपीए और फिर इंडिपेंडेंट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स में जो है ना आपकी आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होगी वो आ जाती है। Bilateral contract markets with balancing mechanism.
तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि साफ ज़ाहिर है जब आपने ये दो तरफा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो आपने बैलेंसिंग रखनी होती है। तो उसके लिहाज से बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मॉडल विद बैलेंसिंग मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ bilateral contracts, invoicing and payments, settlement and payments, sale oblique purchase differences and settlements। तो इसमें जो है ना सबसे पहले जो है वो आपका साझेदारी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना बायलैटरल होगा, इसमें टू पार्टीज होंगी, इसमें फिर इनवॉइसिंग और पेमेंट्स भी होगी, फिर इसके अलावा जो है ना जो आपकी डिफरेंसेस जनरेट होंगी वो भी जो है ना वो दोनों साइड से जो है ना वो रिमूव होगी। नेक्स्ट आपको जो है ना फिगर दिखाई गई है, इसमें आप देखें तो इसका बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है ना वो दिखाया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो आप देखें इनवॉइसिंग पेमेंट्स है, सेटलमेंट्स हैं, फिर आप देखें सेल्स परचेज के डिफरेंसेस हैं और आपकी जनरेशन और उसके अगेंस्ट जो है ना डी स्टैंड्स फॉर डिमांड है। तो जितनी डिमांड होगी आपके पास पावर की उसी लिहाज से आप जनरेशन से जो है ना वो रिक्वायर करेंगे और जनरेशन जो है ना वो आपकी जो भी पावर की डिमांड होगी उसको वो जनरेशन जो है ना वो काम करेगी और उसी के लिहाज से फ्यूचर प्लानिंग भी जो है ना वो नेक्स्ट balancing mechanism. It is a tool where both parties to a bilateral contract sale or purchase the differences between contractual and actual quantities injected to or extracted from the grid. तो इसमें जो है ना जिस तरह मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो है ना ये कि आपका पावर का टूल होगा, जिस तरह मंडी हमारे मुल्क में होती है मुख्तलिफ चीजों की, तो उसमें जो है ना वो आपके बायर और सेलर जो है ना वो फ्रीडम से जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे। देयर विल बी बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एनर्जी एंड फॉर कैपेसिटी। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि साथ रह फ्यूचर के नेक्स्ट 24 आवर्स की डिमांड जो है ना वो प्लानर प्लान कर रहे होते हैं, उसको काम करने के लिए जो है ना वो आपको सिस्टम के अंदर जो है ना वो जनरेशन कैपेसिटी जो है ना वो ऐड करनी होती है। Allow flexibility for participants and boost efficiency। तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और जो आपकी इकोनॉमिकल डिस्पैच होगी वही जो है ना आगे मार्केट में सेल के लिए आएगी। The MO will calculate the imbalance prices for each trading period। तो इसमें साफ जा रहा है आप पीरियड को भी मेंशन करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट होगा ये एक क्वार्टर के लिए होगा, इतने टाइम के लिए या इतने पीरियड के लिए होगा। We require credit cover for cases of non-payments, the amount arising from this mechanism। Next. General structure of bilateral contract market model। Then its general structure consists of system operator। तो सिस्टम ऑपरेटर पाकिस्तान के अंदर एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद से जो है ना वो जो है ना ये होल ऑफ कंट्री जो पावर की डिस्पैच है वो कंट्रोल की जाती है। मार्केट ऑपरेटर्स में जो है ना सीपीपीए जो है ना वो अपना रोल अदा करेगी। उसके बाद सिस्टम प्लानर में जो है ना आपकी वापडा मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है ना वो आप इन्वॉल्व होगी, जो भी प्लान करेंगे वो जिस तरह भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना 2030 के लिए जो है ना वो सिस्टम को प्लान किया गया है। इंडिपेंडेंट ऑक्शनर एडमिनिस्ट्रेटर्स में आपकी कंसर्न जो है ना वो डिस्क्लोज आएंगी। उसके बाद ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर में जो है ना वो एनटीडीसी होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो इसकी हायरार्की जो है ना वो दिखाई गई है। सिस्टम प्लानर, देन जनरेशन आपकी होगी, फिर उसी के लिहाज से जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, सीपीपीएस, मार्केट ऑपरेटर्स, सिस्टम ऑपरेटर्स और फिर आईएए इंडिपेंडेंट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इन सब
कि होल कंसिडरेशन से जो है ना वो आपकी जो पावर डिस्पैच है वो सिस्टम के अंदर जो है ना वो होगी। तो इसमें अगर किसी भी वक्त किसी टाइम पे जो है ना अगर कोई डिफरेंसेस जनरेट होती हैं तो वो जो है ना वो बायलैटरली जो है ना वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट, न्यू मार्केट मॉडल फीचर्स। New market model has many features. Some of existing PPAs. तो जो existing power purchase के agreements होंगे वो साफ है जब तक उनका पीरियड कंप्लीट नहीं होता उनको आपने लेके चलना है। फिर नेक्स्ट है आपके न्यू PPAs। तो न्यू PPAs जो है ना वो जो है ना बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मॉडल के तहत जो है ना वो होंगे। कंपटीशन फॉर एंड इन द मार्केट्स। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में जो कंपटीशन होगा हर बंदा कोशिश करेगा कि उसकी जनरेशन जो है ना वो जो है ना वो जो है ना सस्ती जो है ना वो हो और जो है ना जो भी प्राइस होगा वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। सेंट्रलाइज न्यू कैपेसिटी प्रोक्योरमेंट, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक डिस्पैच, उसके बाद आपका क्रेडिट कवर होगा, नॉन पेमेंट रिस्क होंगे, फिर कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस जो भी होंगी वो बायलैटरली जो है ना वो सॉल्व कर ली जाएगी। तो नेक्स्ट आप पेज पे देखें तो ये अगेन जो है ना ये एक इसकी डायग्राम दिखाई गई है जिसमें जनरेशन है, डिमांड है आपकी जो है ना, और इसमें मार्केट ऑपरेटर्स हैं आपके जो मैंने अभी जो मुख्तलिफ पैरामीटर्स बताए हैं, एग्जिस्टिंग पीपीएस, न्यू पीपीएस, कंपटीशन फॉर एंड इन द मार्केट्स, लो परफॉर्मेंस डिस्कोज भी इसमें होंगी, बैलेंसिंग मैकेनिज्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन होगी। ये सारे जो इसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो जो है ना वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस। तो कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस में जो है ना आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स साफ है जो होंगे वो आपके कंज्यूमर्स या डिमांड होगी, will have the obligations of having a relevant part of their consumption and demand covered by contracts. Then second है discos will be accountable for their demand projections. Third one where these capacity obligations is a contribution to ensure medium and long-term security of supply. Next, discos shall have X percentage of its projected demand for each of the next 3 years. तो इसमें आप देखेंगे X एक एज्यूमेबल क्वांटिटी है, तो इसमें जो भी आपकी डिस्पोज होगी वो 3 इयर्स के लिए जो है ना वो अपनी जो डिमांड होगी उनकी आने वाली फ्यूचर में वो उसको हाईलाइट करेंगी। Y परसेंटेज फॉर द फॉलोइंग 2 इयर्स। तो Y इसमें जो होगा वो फॉलोइंग 2 इयर्स का होगा। तो इसी तरह से जो है ना ये अपनी डिमांड को जो है ना ये ऑनलाइन जो है ना ये पेश करेंगे। सिमिलर टू बीपीसी एंड के इलेक्ट्रिक फॉर इट्स परचेज इन द मार्केट। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक जो है ना वो ऑलरेडी इसी मॉडल पे जो है ना वो चल रही है। नेक्स्ट, न्यू पीपीएस फॉर्मेट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना कि आपको जो पावर परचेज का एग्रीमेंट है न्यू उसका फॉर्मेट दिखाया जाएगा। पोर्टफोलियो ऑफ पीपीएस, लोड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरेशन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विद फिक्स्ड क्वांटिटीज, bilateral rights and obligations, seller to deliver committed energy and capacity agreed in the PPAs. Next है purchase to pay in time the price agreed in PPAs or financial contracts with physical obligations to supply. Then two products contracted in the market, energy to cover electricity consumption, firm capacity for security of supply. International experiences shows that all bankable contracts normally
not requiring government guarantees. तो इसमें लास्ट वन पे जो आपकी इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है उनकी यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो है ना जो आपके बायलैटरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स होंगे, तो उनमें बैंक्स जो है ना वो गारंटी जो है ना वो देगा, गवर्नमेंट की गारंटी की जो है ना इसमें कोई जरूरत नहीं हो। नेक्स्ट, ये आपको नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल ऑफ पीपीए जो है ना वो एक दी गई है, तो इसमें देखें ए डिस्को हैज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट विद 2 जनरेशंस। तो इसमें जो है ना दो आपके पास डिस्को है जिसके पास 2 जनरेटर्स हैं जो उसको पावर सप्लाई करेंगे। फिर जनरेटर 1 परचेज बेस लोड, तो बेस लोड जो है ना वो आप देखें तो वो G1 आपका जो है ना वो कवर करेगा। विद G2 कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस अमाउंट्स ड्यूरिंग द डे, तो इसमें जो G2 होगा वो आपकी जो कैपेसिटी राइज होगी करंट टाइम में उसको कम करने के लिए जो है ना वो सिस्टम में होगा। डिस्पोज एक्चुअल डिमांड इज द ग्रीन कर्व, तो इसमें जो ग्रीन कर्व है दिखाई गई है वो आप डिस्पोज जो है ना वो एक्चुअल या करंट डिमांड होगी। ड्यूरिंग सम आवर्स डिस्पोज टेक्स लेस देन द एग्रीगेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो साफ है उसमें वो ये बता रहा है कि जो एग्रीगेटेड कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने जो एक्सेप्ट किया था उसमें से वो कम जनरेशन ले रहा है। ड्यूरिंग सम आवर्स डिस्पोज टेक्स मोर देन द एग्रीगेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा उसको जनरेशन चाहिए होगी, फिर उसको काम करने के लिए डिस्को पेज जनरेशन 1 while generation 2 the contracted quantities at PPA prices. Differences are settled in the balancing mechanism. तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसमें जो डिफरेंसेस होगा वो बाय के तहत जो है ना वो पे होगा। In this example, quantities taken above the contracts is more than quantities not taken before the contracts. Net balance is that has purchased the differences in the balancing mechanism. Next. तो नेक्स्ट पेज पे भी आप देखें तो आपके पास वो देखें जो इसमें कलर हाईलाइट किया गया है, जो आपके पास रेड में लिखा हुआ है आपके पास सेल्फ सरप्लस है। तो बाइज when generation less than total energy consumption in contracts, तो साफ है जब जो है ना वो आपकी जो डिस्पोज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप देखें नीचे ब्लू कलर में है, और कॉन्ट्रैक्ट्स विद बल्क पावर जो है ना वो ग्रीन कलर में है। जो सरप्लस एनर्जी है वो आपके पास एक लैडा कलर में दिखाई दी है, तो उसको काम करने के लिए जो है ना वो आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बड़ा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, regulation and codes. Market participants are obliged to comply with the rules, regulation and codes. तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ग्रिड्स कोड जो है ना वो अप्लाई हो गए हुए हैं, कमर्शियल कोड्स हैं। Provisions in the contracts will establish that in case of any inconsistency or discrepancy with the code will prevail to the extent of inconsistency. तो इसमें जिस तरह मैंने पहले बताया कि किसी भी टाइम पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जनरेट होती है तो वो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू कोड्स जो है ना वो रिजॉल्व होगा। Bilateral contracts. Bilateral contracts में pre-existing PPAs and PPAs will be converted into bilateral contracts with each disposed by assigning them to each disposed. तो each disposed में जिस तरह मैंने बताया है enforcing and PPAs proportionally to the existing allocation factors. Bilateralized contracts will have energy and capacity commitments and will be registered in the CPPAG registrar. Last one, PPAs that cannot be assigned, mostly 1994 policy, will transitorily be included in the supply wholesaler purchasing their production and reselling it in the market. तो इसमें जो है ना वो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये एक होलसेल मार्केट जो है ना वो बन जाएगी
और जो कंज्यूमर एंड पे जो है ना जो इलेक्ट्रिसिटी महंगा होने का शोर है वो भी काफी हद तक जो है ना वो इससे कम हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है कि जो आपका जो टर्न ओवर है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी ओवर पेमेंट्स जो हर साल जो है ना वो आपकी इंक्रीज हो रही है वो भी जो है ना वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, न्यू कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स डिस्पोज विल डिटरमिन द अमाउंट टू बी कंट्रैक्टेड। तो डिस्पोज जो होंगी वो लोकल लेवल पे अपनी जो है ना जो उनकी डिमांड होगी वो जो है ना उसके लिहाज से वो परचेज करेंगे बेस्ड ऑन देयर ओन डिमांड्स projection and capacity obligations. The new capacity requirements will be done through centralized competitive tenders or auctions. तो इसमें जो डिस्कोज है वो जो पावर परचेज करेंगी उसका या तो टेंडर न्यूज़पेपर्स में आएगा या जो है ना ऑप्शंस के लिए जो है ना उसको ऑनलाइन जो है ना वो फैसिलिटी अवेलेबल है। The agent will aggregate the capacity and energy required by each dispose and will run the requirement for the total requirements. PPAs will be signed by dispose. तो इसमें आप देखें तो पावर परचेज के जो एग्रीमेंट्स हैं वो जो है ना वो आपके डिस्पोज लेवल पे आ जाएंगे और डिस्पोज जो है ना वो इनको जो है ना वो साइन करेगी और मुतलका जो डिस्पोज होगी अगर उससे इलाके में कोई भी पावर प्रोड्यूसर है तो वो अपनी पावर जो है ना वो लोकली जो है ना मुतलका जो कंसर्न डिस्को होगी उसको जो है ना वो परचेज के लिए जो है ना वो ऑफर करेगा। नेक्स्ट, बैलेंसिंग मैकेनिज्म। तो जिस तरह मैंने फर्स्ट ऑफ बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा पूल बन जाना है और इसमें जो है ना वो आपकी कंपटीशन होगी। It is a pool where both parties to bilateral contract sale or purchase the differences between contractual and actual quantities injected to or extracted from the grid pooling market and later will evolve for trade providing the spot price. तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कंपटीशन है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में वो ट्रूली जो है ना वो बढ़ेगा और कंज्यूमर एंड पे जो है ना वो लो प्राइस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी। देयर विल बी बैलेंसिंग मैकेनिज्म फॉर एनर्जी एंड फॉर कैपेसिटी। तो ये आपकी एनर्जी और कैपेसिटी के दरमियान जो है ना ये एक बड़ा अच्छा बैलेंसिंग होगा। allows flexibility for the participants and boost efficiency. The market operator will calculate the imbalance prices for each trading period. तो इसमें जो आपका मार्केट ऑपरेटर होगा वो इसको बैलेंस रखने के लिए ट्रेडिंग है वो जो है ना वो आपका इम्बैलेंसिंग प्राइस कैलकुलेट करेगा। will require credits cover for cases of non-payments the amounts arising from this mechanism. Next. तो इसमें जो सबसे बड़ा जो है फैक्टर को आप देखें लो परफॉर्मिंग डिस्कोज। तो इसमें जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में जो लो परफॉर्मिंग डिस्कोज होंगी जो जनरेशन के हवाले से या लॉसेस के हवाले से होंगी वो भी हाईलाइट हो जाएंगी। डिस्कोज कैन नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड गारंटीज for bilateral PPAs and or credit cover for participating in the balancing mechanism. Disclose with the history of low collection and low payments records. तो जिस तरह मैंने बताया कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो लॉसेस और रिकवरी में जो है ना जो पीछे होगी वो मजीद इसमें हाईलाइट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट could provide a guarantee or credit mechanism that can be called in case of non or later payments. Next, settlement, invoicing and payments. अब इसमें जो आपकी डिफरेंसेस जो है ना जो क्रिएट होंगी तो उसकी सेटलिंग का जो है ना वो मैकेनिज्म भी होगा। सेटलिंग, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज। तो इसमें जो है ना जो होगी जो है ना यानी कि आपका कोई भी जो है ना जो डिफरेंसेस होगा उसके बड़े कम चांसेस होंगे कि वो आर्बिट्रेशन में जाए क्योंकि ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द मार्केट ऑपरेटर्स।
तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे थ्रू मार्केट ऑपरेटर. Imbalance payments will be made directly by participants based on a settlement done by the market operator and information provided by the system operator. Neither the market operator nor the system operator will be exposed to payment liabilities. Last one, balancing mechanism will settle for each market period as defined in the commercial code. तो इसमें बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है ना वो कमर्शियल कोड के तहत जो भी डिफरेंस जनरेट होगा उसको विद इन द शॉर्ट पीरियड जो है ना वो रिजॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, नॉन पेमेंट्स. तो नॉन पेमेंट्स रिस्क में सबसे आप देखें तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में देखें तो आप will include provisions for cases of non payments. Generator can call the default of PPAs in case of non payments. तो अगर किसी भी मौके पे आके जो है ना वो जो आपका जनरेशन है, जो पावर हाउस है, उसको अगर पेमेंट नहीं होती तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो अपनी जनरेशन सप्लाई को जो है ना वो रोक देगा. जनरेटर्स कैन कंटिन्यू टू सेल थ्रू द बैलेंसिंग मैकेनिज्म. तो फिर उसके बाद जो जनरेटर होगा वो अपनी पावर को कंटिन्यू करेगा लेकिन थ्रू बैलेंसिंग मैकेनिज्म होगा. डिफॉल्टिंग द डिस्पोज विल रिजल्ट बाइंग इन द बैलेंसिंग मैकेनिज्म. तो बैलेंसिंग मैकेनिज्म में आप देखें तो पार्टिसिपेंट मस्ट प्रोवाइड क्रेडिट कवर फॉर द एक्सपोजर्स टू इम्बैलेंसिंग्स. तो इसमें जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे जो आपका क्रेडिट कवर होगा उसको वो जो है ना वो लेंगे, उसमें पेमेंट्स होंगी. इसमें आप देखें तो वन पार्टिसिपेंट्स या ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैन डेलीगेट टू ए सप्लायर या होलसेलर टू assume the balancing mechanism responsibility for that participant. तो इसमें वो कह रहा है कि कोई एक भी या कोई अगर ग्रुप है पावर प्रोड्यूसर का तो वो मिलके इस इशू को जो है ना वो सॉल्व करेगा. नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो जो है ना इसको जो है ना हायरार्किकली जो है ना वो दिखाया गया. नेक्स्ट सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिस्पैच. तो अब साफ जाना है जो है ना इकोनॉमिकल अगर आपकी डिस्पैच होगी तो वही वायबल होगी. सिस्टम ऑपरेटर्स ऑफ एनटीडीसी विल बी रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रलाइज्ड economic security concentrated dispatch including management of demand control and exchanges in international interconnections. तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि यूरोप के अंदर जो है ना वो 26 कंट्रीज जो है ना वो आपस में इंटरलिंक हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी पावर को जो है ना वो शेयर करते हैं. तो इसी तरह की आपकी जो है ना जो डिस्कोज होंगी उनके दरमियान जो है ना वो पावर की शेयरिंग पॉसिबल होगी. The system operator will provide the market operator the necessary information for settlement in the balancing mechanism. Gradually will allow to increase competition for the dispatch among generators. तो इसमें सबसे पहले जो चीज होगी वो आपकी प्रमोट एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव जनरेशन प्राइसेस होंगी और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबिलिटी है वो मजीद जो है ना वो बढ़ जाएगी. एजेंट सेपरेटेड फ्रॉम मार्केट ऑपरेटर. अगर आपका कोई एजेंट किसी वक्त जो है ना वो सेपरेट हो जाता है तो उसमें आप देखें तो कोहैबिटेशन ऑफ मार्केट ऑपरेटर एंड एजेंट इन सीपीए क्लियरली क्रिएट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर किसी भी वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है then market credibility requires that the market operator has not any point of participation in the market transactions. Agent will be in charge of, तो इसमें जो एजेंट होगा वो होगा centralized new capacity requirement on behalf of dispose. तो इसमें जो एजेंट होगा जो पावर प्रोड्यूसर होगा वो बतौर एजेंट होगा
और उसका डिस्कोज के साथ एग्रीमेंट होगा। असिस्ट डिस्कोज इन द वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइसेस इन द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो उसकी इनवॉइसेस होगी वो भी जो कंसर्न डिस्कोज होगी उन्हीं को होगी, और पेमेंट्स भी जो है ना वो उन्हीं के थ्रू होगी। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स आर सिस्टम ऑपरेटर्स, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एनपीसीसी होल पावर सिस्टम का ऑपरेटर है, मार्केट ऑपरेटर इसमें सीपीपीए है। ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स में जो है ना वो आपका एनटीपीसी है। मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में जो है ना एनटीपीसी फॉर पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड टू इट्स नेटवर्क, डिस्कोज फॉर पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो होगा वो उस पे बैन होगा कि वो मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसमें जिस तरह मैंने पहले बताया कि के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना प्राइवेटाइज है और वो इसी जो है ना हायरार्की में चल रही है। के इलेक्ट्रिक विल बी कंसीडर्ड ए मार्केट participant at the connection point of market as a supplier in the role of retailer। तो इसमें एक रिटेल मार्केट जो है ना वो बनेगी, तो के ऑलरेडी उस पे चल रही है। Deviations from contractual quantities will be settled in the balancing mechanism। तो इसमें जितनी भी डेविएशंस जो है ना वो होंगी वो बैलेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना उनकी पेमेंट्स होगी। नेक्स्ट, towards the future, the competitive wholesale electricity market from dispatch perspective is a grassroots that is settled commercially on contracts। तो ये आपका एक बहुत बड़ा पूल इलेक्ट्रिसिटी का बनेगा, जिसमें जो है ना जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जनरेशन के वो अपनी जनरेशन को ऑफर करेंगे, और कंज्यूमर्स या डिस्पोज जो है ना वो भी देखेंगे अपने एंड पे कि उनको जो है ना किस जनरेशन की जो है ना वो जो पावर है वो वायबल है और जो है ना वो सस्ती है। बैलेंसिंग मैकेनिज्म इज द सीड टू फ्यूचर स्पॉट मार्केट। तो बैलेंसिंग मैकेनिज्म इसमें सीड का रोल अदा करेगा कि बैलेंसिंग मैकेनिज्म विल बी इनिशियली यूज्ड फॉर क्लियरिंग द डिफरेंसेस। स्टार्ट पे तो बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है ना वो आपकी जनरेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके दरमियान अगर कोई जो है ना वो डिफरेंस जनरेट होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए होगा। लेकिन लेटर ऑन फॉर ट्रेडिंग ऑन स्पॉट प्राइस या बीएम प्राइस पे जो है ना वो आपका काम शुरू कर देगा। एज द मार्केट डेवलप्स एंड मूव्स टुवर्ड्स पोर्टफोलियो ऑफ मार्केट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स with long, medium and short term duration, it will be possible to assess adding a medium to short term power requirement platform। तो इसमें जो है ना ये आप देखें तो आपका जो है ना ये कम्पिटिटिव जो है ना वो मार्केट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और जनरेशन कंपनीज जो है ना वो कोशिश करेंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जनरेशन को जो है ना वो सेल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करें। और इसी तरह कंज्यूमर एंड पे जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है ना वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगी कि वो जो है ना अपने कंज्यूमर्स के लिए जो है ना वो जितनी भी सस्ती बिजली हो सकती है वो प्रिपेयर करें। सिस्टमैटिक एवोल्यूशन ऑफ पावर मार्केट एंड इट्स कंपैरिजन विद अदर मार्केट्स। तो ये जो है ना एक ऑटोमेटिकली जो है ना ये सिस्टमैटिक एवोल्यूशन जो है ना वो जनरेट हो जाएगा पावर मार्केट्स के अंदर। तो शायद आपने सुना भी हो कि कुछ अर्सा पहले जो है ना कासा 1000 के नाम से जो है ना एक इंटरकनेक्शन जो है ना वो एग्रीमेंट पावर परचेज का जो है ना वो साइन किया गया था। तो ये उस वक्त साइन किया गया था जब पाकिस्तान में पावर की जो है ना जो डिमांड थी वो बड़ी ज्यादा थी और जो जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से तो आप उसको काम कर सकते थे, लेकिन मीटिंग कैपेसिटी नहीं थी, जो अवेलेबल जनरेशन थी वो आपकी जो करंट डिमांड थी उसको उस वक्त काम नहीं कर रही थी। तो उस वक्त जो है ना वो कजाकिस्तान से जो है ना वो 1000 मेगावाट पावर का जो है ना वो एग्रीमेंट साइन किया गया।
लेकिन वो आपके इलाके में इंटरकनेक्शन की जो है ना वो बहुत बड़ी एग्जांपल है। आपने जो है ना कजाकिस्तान से बिजली समर में लेनी थी, और समर में या गर्मियों में जो है ना आपको पता है पाकिस्तान में जनरेशन वेरी हाई होती है ड्यू टू एयर कंडीशनिंग लोड्स। तो एयर कंडीशनिंग लोड की वजह से जो है ना वो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ जो है ना समर में वहां क्योंकि गर्मी ज्यादा नहीं होती तो उनके पास जनरेशन एक्सेस थी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट होते होते इम्प्लीमेंट होते होते जो है ना वो काफी टाइम लग गया। तो वो अभी प्रैक्टिकली इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो जो है ना वो काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब उसका सिनेरियो चेंज हो गया है। अब पाकिस्तान जो है ना वो पावर लेगा नहीं बल्कि पावर जो है ना उनको देगा, और ये उसी जो है ना टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग जो है और इंटरनेशनल जो पावर पूल है ये उसमें जो है ना कासा 1000 प्रोजेक्ट जो है ना वो बड़ा अहम रोल जो है ना वो अदा करेगा। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग की स्टेजेस जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो जो प्लान की गई है वो आपके सामने है। 2017 से जो है ना इस पे काम स्टार्ट है, और आप देखें 2018 में बिलिंग एग्रीमेंट्स वाया नेपरा रेगुलेशन मेड कॉन्ट्रैक्ट्स रोड मैप इसका जो है ना किया गया। फिर 2020 में आप देखें तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी पे जो है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी तरफ जो है से जो है ना वो प्रैक्टिकली इस पे काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया गया है, और हर डिस्कोर्स के अंदर जो है ना एक नया जो है ना वो सेक्टर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो मार्केट मिराज के नाम से मार्केट इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशन अफेयर्स डिपार्टमेंट्स के नाम से है, जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। और जो भी डिस्कोर्स हैं उनकी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, जो उनकी लोड फोरकास्टिंग है उसके ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो लोड की प्रोजेक्शन है और जो नेक्स्ट फ्यूचर में लोड की डिमांड है उस पे वो काम करके जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और एनटीपीसी को जो है ना वो सारा डाटा जो है ना वो करंट टाइम में जो है ना वो दे रहे हैं। और आप देखें तो ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना वो जल्द ही जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की जो आपके पास कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी वो अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है ना जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप में जो है ना वो आप देखें तो इसके लिए जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप जो है ना वो असाइन किए गए। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट्स ओवरऑल जो है ना वो आपका जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है ना वो वहां से ये स्टार्ट होगा, नेपरा सीपीए जीज, देन जो है ना ये चलते चलते जो है ना ये आगे डिस्कोर्स तक जो है ना वो आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एक्शन। तो इसमें जो है ना आप देखें तो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है उसमें एक जो है ना वो ग्रुप बना के उनके एक्शंस जो है ना वो डिफाइन किए गए। पॉलिसी ऑन मार्केट डेवलपमेंट है, उसके बाद अमेंडमेंट इन लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू होलसेल मार्केट। अब साफ ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट होलसेल हो जाएगी, इसके लिए आपको जो है ना जो आपके लॉज एंड रेगुलेशंस से कंसर्न चीजें हैं वो भी आपने उनका भी फ्रेमवर्क बनाना है। मॉडिफिकेशंस टू अडॉप्ट और रिप्लेस एनर्जी पॉलिसीज, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग जो एनर्जी पॉलिसीज है उनके अंदर भी अमेंडमेंट्स आपको चाहिए होंगी, मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। मॉडिफिकेशन टू पावर सेक्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो पावर सेक्टर का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है
उसके अंदर भी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। न्यू मार्केट कमर्शियल कोड एंड अपडेट ग्रिड कोड्स, आपको जो आपके एग्जिस्टिंग ग्रिड कोड्स हैं उनको भी अपडेट करना पड़ेगा, और आपको न्यू मार्केट के अंदर जो न्यू कमर्शियल मार्केट कोड्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सीपीपीए इनटू मार्केट ऑपरेटर एंड स्पेशल होलसेल सप्लायर फंक्शंस। तो जो सेंट्रल पावर परचेजिंग जो अथॉरिटी है उसको भी जो है ना वो आपने जो है ना पावर देनी है एज मार्केट ऑपरेटर की, तो ताकि वो जो है ना वो इस होलसेल जो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट होगी इसको वो जो है ना वो कंट्रोल कर सके। स्ट्रेंथिंग ऑफ सिस्टम ऑपरेटर, तो जो सिस्टम ऑपरेटर होगा उसकी भी आपको स्ट्रेंथिंग की जरूरत आएगी। स्ट्रेंथिंग डिस्कोर्स, तो डिस्कोर्स जो होगी उसके अंदर भी आपको स्ट्रेंथिंग की जरूरत आएगी। जिस तरह मैंने बताया कि डिस्कोर्स के अंदर जो है ना मिराज के नाम से जो है ना वो डिपार्टमेंट जो है ना वो खोल दिया गया है, और इसके ऊपर जो है ना वो जो है ना मुतलका डिस्कोर्स जो है ना वो मार्केट से हायरिंग भी कर रही है स्टाफ के लिए। ओपन एक्सेस टू ट्रांसमिशन सर्विसेज, तो आपकी अब तक जो ट्रांसमिशन सर्विसेज हैं वो ओपन एक्सेस नहीं है, आपको पता नहीं है। जो आपके पास जनरेशन का ऑर्डर है जिसको हम मेरिट ऑर्डर कहते हैं, तो वो क्या है, वो उसमें कौन कौन सी जनरेशन है, इसका क्या रेट है, तो अभी ये सारी चीजें जो है ना वो ऑनलाइन या आम बंदे की असेसमेंट नहीं है। असाइनमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पीपीएस या आईपीएस, तो इसमें जो आपके पहले पावर परचेज के एग्रीमेंट्स हैं उनको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। एनटीडीसी सिस्टम प्लानर, तो एनटीडीसी को भी आपको स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि उसने सबसे जो लीस्ट कॉस्ट जो है ना वो जो जनरेशन होगी वही उसने वो लेनी है, और जो इकोनॉमिक डिस्पैच होगी वही उसने करनी है। एंड मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, और इसमें जो आपके मीटरिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कंसर्न डिस्पोज है उनको भी स्ट्रेंथ करेंगे। measures to enhance wholesale payments culture, credit cover mechanism and payment systems। तो भी आप करंट देखें तो आपको पता है कि जो आपका क्रेडिट कवर है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ गया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको बड़ी महंगी मिल रही है। रेडीनेस फॉर कमर्शियल ऑपरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डेट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन, तो जल्द ही जो है ना ये जो कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी की ये पाकिस्तान में जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मार्केट इंप्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन, टू इंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन actions by stakeholders at the market interface, it is necessary to create a coordination body, facilitate understanding of new market and requirements, support to stakeholders, detect deviations and provide solutions, facilitate the interface between stakeholders। तो इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होंगे वो 1-to-1 जो है ना वो एक दूसरे से उनकी कोऑर्डिनेशन होगी, और जो टाइम इससे पहले जाया होता था उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कैपेसिटी जो बिल्डिंग होगी आपकी, स्पेशली ऑपरेशनल लेवल पे, तो ऑपरेशनल लेवल पे जो आपकी डिस्पोज होगी उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी उसका लेवल जो है ना डेफिनेटली जो है ना वो एनहांस हो जाएगा। नेक्स्ट मार्केट मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, तो इसका एक मार्केट मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन ग्रुप भी बनाया गया है। तो उसमें आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का इसमें मेन रोल होगा, उसके बाद सीपीपीए एंड नेपरा एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो इसमें नेपरा और सीपीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, और एनटीडीसी आईपीपीज डिस्पोज पीपीआईबी एईडीबी भी जो है ना उसके बाद होंगी,
और लास्ट मंथ पे आपकी वापडा हाइड्रो या जेनकोस होंगी, जो करंटली जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं वो भी इसके जो है ना इसकी जो मार्केट मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होगा उसके मेंबर। तो ये आप देखें तो कोऑर्डिनेशन सपोर्ट और गाइडेंस में मार्केट इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, उसकी हायरार्की जो है ना वो दिखाई गई है। तो आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर इसमें मेन रोल अदा करेगी, उसके बाद नेपरा और सीपीपी है, और उसके बाद आप देखें तो एनटीडीसी है, आईपीपीज हैं, डिस्कोज हैं, पीपीई है, एडीपी है, आईपीसीज हैं, और जो है ना आपकी डिस्कोज लेवल पे जो है ना जिसको हम कहते हैं डीजीज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। नेक्स्ट, न्यू मार्केट चैलेंजेस। अब साफ जाएगा कि आप जो ना करंट सिनेरियो से जो है ना कॉम्पिटिटिव जो है ना वो मार्केट में स्विच ओवर हो रहे हैं, तो उसमें मैनी चैलेंजेस होंगे। न्यू मार्केट हैज मैनी चैलेंजेस, सम ऑफ न्यू कल्चर। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक नया कल्चर होगा, एक नया पैराडिग्म शिफ्ट होगा। उसके बाद न्यू कैपेसिटीज, तो इसमें जो है ना वो कैपेसिटी चेंजेस आएंगी, स्पेशली आपकी डिस्पोजल लेवल पे। न्यू टेक्नोलॉजीज, जिस तरह मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो है ना, जो आप जो है ना लोकल लेवल पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो है ना वो करंट जो डिस्पोज है उनके साथ जो है ना वो आप नेट मीटरिंग में चले जाएंगे। उसके बाद न्यू एचआर अप्रोच, जिस तरह मैंने बताया कि एचआर की एक न्यू अप्रोच होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मिराट के नाम से डिपार्टमेंट जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया है इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। न्यू अकाउंटेबिलिटी, तो साफ है स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी चेंज होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो पावर सेक्टर की जो एफिशिएंसी होगी और स्पेशली जो उसकी रिलायबिलिटी और चीपनेस होगी, उसमें जो है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मार्केट इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ग्रुप में आप देखें तो प्रमोटिंग, इंड्यूसिंग, मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ट्रेनिंग और डिसेमिनेटिंग। तो ये जो है ना ये की रोल्स हैं जिस पे जो है ना ये मार्केट इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो ग्रुप जो है ना काम कर रहा है। और करंटली जो है ना वो जो कंसर्न डिस्कोज हैं उनके जो कंसर्न मैनेजर्स हैं उनको जो है ना ट्रेनिंग भी जो है ना वो इस लिहाज से दी गई है, और ट्रेनिंग के लिए जो है ना लम्स का जो एनर्जी इंस्टीट्यूट है वहां जो है ना ये इसकी ट्रेनिंग जो है ना उनको दी गई है, जो इब्तदाई ट्रेनिंग थी वो उनको दे दी गई इंप्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट, रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें आप देखें तो 17 ग्रुप एक्शंस एंड सब एक्शंस हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट, ओवरऑल डिसीजंस एंड एक्शंस, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने ही लेने हैं। तो उसमें सब एक्शन देखें तो आप मार्केट मॉडल है, कंसेप्चुअल डिजाइन है, रिपोर्ट है, सबमिशन है नेपरा को, सेकंड पे है नेपरा का रिव्यू है, थर्ड पे नेपरा की अप्रूवल है, फोर्थ पे सीटीपीए को जो है ना वो सबमिट किया जाएगा नेपरा की अप्रूवल के बाद। उसके बाद मार्केट इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और उसकी रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट, उसके बाद ग्रुप 1 एक्शन में जो है ना वो आप देखें पॉलिसी ऑन मार्केट डेवलपमेंट, व्हाइट पेपर डिस्क्राइबिंग द मार्केट कंसेप्चुअल डिजाइन। तो व्हाइट पेपर जो है ना वो होगा इसके लिए नेपरा जो है ना वो स्टेक होल्डर होगा, सीपीपीए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर। इसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन होगी, तो इसमें सब एक्शंस आप देखें तो 1 पे सीपीपीए है, 2 पे सीपीपीए है, 3, 4 पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर। इसी तरह जो है ना ये सब ग्रुप ऑफ एक्शंस होंगे। नेक्स्ट में आप देखें तो अमेंडमेंट टू लीगल फ्रेमवर्क। तो साफ है जब आपने बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है और कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग में जाना है तो आपको जो है ना जो आपका एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अंदर चेंजेस लानी पड़ेगी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर वो जो है ना कोऑर्डिनेट करेगा विद सीटीपीए। तो इसमें जो सब एक्शन होंगे
वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर प्रिपेयर्स NEPRA Act amendments to include competitive electricity market based on approved policy. तो अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत जो आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट बनेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसका एक्ट जो है ना वो नेपरा पास करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर कैरीज आउट कंसल्टेशन एंड सबमिट्स प्रपोजल अरेंजमेंट्स टू नेशनल असेंबली फॉर इंटेक्टमेंट। तो आपकी नेशनल असेंबली में ये जो है ना ये कानून पेश किया जाएगा पास होने के लिए नेपरा एक्ट amendment to incorporate market development policy is approved। तो आपकी नेशनल असेंबली की अप्रूवल के बाद ही जो है ना वो नेपरा जो है ना वो इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकेगा। नेक्स्ट ग्रुप 3 एक्शंस में आप देखें मॉडिफिकेशंस टू अडॉप्ट और रिप्लेस एनर्जी पॉलिसीज to consist with the market development policy। तो इसमें मेन स्टेक होल्डर जो है ना वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर होगी। तो सब एक्शंस में आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है ना वो अपनी रेलेवेंट पावर पॉलिसी को इंश्योर करेगी और इसमें जो है ना कुछ अगर चेंजेस होंगी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के ही एंड पे जो है ना वो चेंज होगी। Third, where new or amended policies are communicated to stakeholders and made public in Ministry of Water Power website। तो जो भी इसमें चेंजेस आएंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर की जो वेबसाइट होगी उस पे पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगी और ये पब्लिकली होगी। नेक्स्ट तो ग्रुप एक्शन 4 में आप देखें तो मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर कोई रिव्यू करना है, कोई अमेंडमेंट करनी है आपने पावर सेक्टर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। तो उसमें जो मेन आगे स्टेक होल्डर होगा वो नेपरा है। नेपरा के बाद अब देखें इसमें 5 सब एक्शंस जो है ना वो ग्रुप होंगे। तो ये नेपरा के लेवल पे जो है ना ये इसको रिव्यू किया जाएगा और इसको जो है ना ये अमेंडमेंट करके जो है ना इसको जो है ना पास किया जाएगा। ग्रुप एक्शन 5 में देखें तो असाइनमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पीपीएस। तो इसमें जो आपके पहले से पावर परचेज के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको जो है ना वो आप मॉडिफिकेट करेंगे, मॉडिफिकेशन उनकी होगी, साइन होंगे और इसमें स्टेक होल्डर जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर सीपीपीए और आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और आपकी जो जेनकोस होंगी। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी इसमें स्टेक होल्डर होंगी। तो इसमें सब एक्शन देखें तो 11 है जो आपके सीपीपीए से स्टार्ट होके एंड जो है ना वो डिस्पोज करता है। नेक्स्ट ग्रुप एक्शन 6 सेपरेशन ऑफ सीपीपीए इनटू मार्केट ऑपरेटर एंड स्पेशल होलसेल सप्लाई फंक्शन। तो इसमें ग्रुप एक्शन 6 में जो है ना ये एक्शन डिफाइन कर दिया गया कि आपने जो है ना सीपीपीए को स्ट्रेंथन करना है कि वो मार्केट ऑपरेटर और होल सेलर के तौर पे जो है ना वो काम कर सके। तो इसमें सब एक्शंस जो है ना वो आप देखें तो वो 5 तक है। तो लास्ट वन पे है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पीएमएस एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट ग्रुप एक्शन 7 क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑपरेटर एज ए सेपरेट कंपनी। तो अब सामने है आपने सीपीपीए को मार्केट ऑपरेटर बनाया और इसको एक सेपरेट कंपनी भी आपने जो है ना वो न सिर्फ उसको शो करना है बल्कि आपने उसको स्ट्रेंथन करना है और उसको मैच्योर करना है। सीपीपीए इन पार्टिकुलर मार्केट ऑपरेटर बिजनेस यूनिट के तौर पे ये होगी और ये जो है ना ये पावर की जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी इससे में जो आपकी टेंडरिंग वगैरह बाकी चीजें होंगी उसमें ये जो है ना कि मेजर रोल अदा करेगी। उस मार्केट का जो बिजनेस डेवलपमेंट सेक्टर होगा वो सीपीपीए उसको जो है ना वो देखेगी। तो उसमें देखिए सब एक्शन 1 से लेकर 5 तक है। तो इसमें देखिए लास्ट वन पे बोर्ड मेंबर्स एंड मैनेजमेंट डेजिग्नेशन
उसके बाद स्टाफ एलोकेशन है, मार्केट ऑपरेटर है और कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो इसके अंदर जो है ना वो सीपीपीए का बोर्ड भी अलग से बनाया जाएगा। उस बोर्ड के मेंबर्स जो है ना वो भी जो है ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से जो है वो लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 8, क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस। तो इसमें सप्लायर टू डिस्क्लोज एजेंट जो है ना वो है, और इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सीपीपी है पार्टिकुलर सेंस में, बिजनेस यूनिट पे तो इसके सब एक्शन जो है ना वो 1 से लेकर 4 तक है। तो इसमें जो है ना वो मेन स्टाफ पे यही है कि जो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है विद रिस्पेक्ट टू स्टाफ जो है ना वो इंश्योर की जाएगी। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 9, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब इसमें जो है ना वो आपका जो इंडिपेंडेंट ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको क्रिएट किया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है ना वो उसका इसमें मेन रोल होगा। इसके अलावा आईटी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड भी जो है ना वो कंसल्टेशन होगी उसकी, और सीपीपीए की जो है ना वो कंसल्टेशन होगी डिस्कोर्स के साथ। तो इसमें सब एक्शन जो है ना वो 1 से लेकर 5 है। तो 5 में आप लास्ट वन पे देखें तो सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड सिस्टम। तो इसमें जो है ना आपका वेब बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें बायर और सेलर जो है ना वो इसमें कंप्लीट कर रहे हुए वो अपनी सर्विसेज को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये जो है ना इसमें कहने का ये मतलब है कि ये जो है ना ये होलसेल मार्केट और इंटरनेशनल लेवल की ये मार्केट पावर की बन जाएगी, और जिसमें पावर ना सिर्फ इंपोर्ट होगी बल्कि एक्सपोर्ट भी होगी। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 10 में आप देखेंगे कोर्स न्यू मार्केट कमर्शियल कोर्स। तो इसमें आपको चूंकि ये कमर्शियल प्रोसीजर है तो कमर्शियल कोर्स जो है ना वो आपको नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। तो उसके लिए सीपीपीए जो है ना उसकी कंसल्टेशन होगी। तो वो इस पे काम करके इसको रिव्यू के लिए जो है ना वो नेप्रा के पास भेजेगा। नेप्रा जो है ना वो आपके जो न्यू कोड्स होंगे, जो कमर्शियल कोड्स होंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के, उनको जो है ना वो अप्रूव करेगा। और उसकी अप्रूवल आप देखें तो उसकी अप्रूवल के बाद जो है ना वो आपके जो आगे नेक्स्ट जो कोड्स हैं ग्रेड के जो अपडेट होने वाले हैं वो भी अपडेटिंग के लिए जो है ना वो एनटीडीसी के एंड से जो है ना वो नेप्रा को जो है ना वो रिव्यू के लिए भेजेगा। ग्रुप एक्शन 11 में आप देखें स्ट्रेंथिंग ऑफ सिस्टम ऑपरेटर। तो इसमें जो सिस्टम ऑपरेटर्स होगा उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो जो एनटीडीसी और एनपीसीसी है वो जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो सिस्टम ऑपरेटर्स के तौर पे आएंगे। इस होल प्रोसेस को जो है ना ये दोनों वॉच कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। सब एक्शन ग्रुप्स में आप देखें तो 1 से लेकर 4 है। 4 में आप देखें तो लास्ट वन पे है एचआर सिस्टम है, एनपीसीसी न्यू स्टाफ रिक्रूटमेंट है। तो इसमें न्यू स्टाफ जो है ना वो हायर किया जाएगा स्पेशली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए। इसके अलावा इसमें बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 12, strengthening disclose credit worthiness and readiness as market participants। तो अब इसमें लाल 12 में जो है ना आपकी जो डिस्क्लोज होगी उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इंडिपेंडेंट किया जाएगा, और उनको जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो केजल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसमें आप सब एक्शन देखें तो 1 पे है डिस्क्लोज कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, 2 पे है होलसेल पेमेंट हिस्ट्री फाइनेंशियल सिचुएशन कलेक्शन ऑफ डिस्क्लोज। तो इसमें आप देखें तो कहने का ये मतलब है कि जो डिस्क्लोज लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होंगी उसकी जो है ना वो जो परसेंटेज है उसके अंदर भी बेहतरी आएगी, और डिस्क्लोज लेवल पे जो उनकी एफिशिएंसी होगी वो बेटर होगी। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 13, ओपन एक्सेस टू ट्रांसमिशन सर्विस।
तो इसमें जिस तरह मैंने बताया कि पावर पूल एक मार्केट होगी, इसमें ओपन एक्सेस होगी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होंगे उनके लिए। इसमें एनटीपीसी एज ट्रांसमिशन नेटवर्क ओनर होगा, एनटीपीसी एज सिस्टम ऑपरेटर। तो इसमें सब एक्शंस में आप 1 और 2 में देखें, एनटीपीसी इसकी ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करेगा, नेटवर्क से अप्रूवल लेगा, एनटीपीसी एग्रीज विद ईच कनेक्टेड पावर प्लांट्स। तो आपका एनटीपीसी जो है ना वो पावर परचेज के जो एग्रीमेंट्स होंगे उनकी कोऑर्डिनेशन होगी, जो आपके पावर प्रोड्यूसर्स होंगे। इसके अलावा अगर ग्रिड कोड्स में कुछ अमेंडमेंट होगी तो वो भी इसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 14 में आप देखें तो एनटीपीसी एज प्लानर लीस्ट कॉस्ट एक्सपेंशन प्लान एंड मार्केट सर्विस प्रोवाइडर एडिक्वेट रेवेन्यू सेटलमेंट मैटर्स। तो इसमें आप देखें तो जो है ना वो एनटीपीसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि जो लीस्ट कॉस्ट है पावर जनरेशन की एक्सपेंशन प्लान की वो अप्रूव किया जाए, और जो लीस्ट कॉस्ट जनरेशन है वो जनरेशन के अंदर ऐड की जाए, और जो जनरेशन का ऑर्डर होगा जिसको हम मेरिट ऑर्डर कहते हैं वो भी जो है ना वो मार्केट कंसंट्रेट और इकोनॉमिक डिस्पैच को जो है ना वो मद्देनजर रख के जो है ना वो बनाया जाएगा। इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स होंगे एनटीपीसी, नेपरा, रिन्यूअल एंड अप्रूवल ऑफ प्लान, के बाद देन सीपीपीए होगा। तो इसमें आप देखेंगे जो है ना ग्रुप एक्शन सब एक्शन ग्रुप में 1 से लेकर 5 तक है। मंथ में एनटीपीसी होगा, तो लास्ट मंथ में जो है ना वो सीपीपी होगा। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 15 में देखें माइयर्स फाइनेंस को होलसेल पेमेंट कल्चर। तो इसमें जो होलसेल पेमेंट कल्चर होगा उसको जो है ना फिनांस किया जाएगा। तो इसमें सब एक्शंस देखें तो मार्केट ऑपरेटर एस्टैब्लिशेस द मार्केट पेमेंट सिस्टम्स, मार्केट ऑपरेटर डेवलप्स मेथोडोलॉजी एंड फार्मूला टू डिटरमिन मार्केट क्रेडिट कवर। थर्ड वन पे डिस्पोज एंड एमडब्ल्यूपी यानी कि डिस्पोज और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो होगी एस्टैब्लिश फॉर बैड परफॉर्मिंग डिस्पोज एज पेमेंट सिक्योरिटी कवर फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मार्केट पेमेंट्स ऑफ these discos organized through the IAA। तो इसमें जो है ना जो आपकी जो लो परफॉर्मिंग डिस्कोज होगी वो जो है ना वो करंटली जो है ना वो मजीद जो है ना वो इसमें हाईलाइट हो जाएंगे कि आपकी ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जो है ना वो खसारे में जा। नेक्स्ट, ग्रुप एक्शन 16 रेडीनेस फॉर कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो ग्रुप एक्शन 16 में जो है ना वो इसकी रेडीनेस होगी लीड बाय सीपीपीए। तो इसको सीपीपीए जो है ना वो लीड करेगा विद कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और नेपरा से जो है। इसमें सब एक्शन जो है ना वो 1 से लेके 6 तक है आगे के। लास्ट वन इज ग्रुप एक्शन 17 डिक्लेरेशन ऑफ डेट टू स्टार्ट कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मार्केट। तो इसमें जो है ना फाइनली जो है ना आपकी एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी, उसको ऑनलाइन भी अनाउंस कर दिया जाएगा वेब पे भी जो है ना कि ये जो है ना ये इसकी कमर्शियल ऑपरेशन की जो है ना वो डेट होगी। नेक्स्ट, लीगल एंड पॉलिसी एक्शन बाय नेपरा एंड सीपीपीए। तो इसमें आप देखें तो नेपरा एक्ट विद अमेंडमेंट्स 2018 एंड competitive markets. Section 14A National Electricity Policy and Plan. Subsection 1. Federal government shall, from time to time, with the approval of the Council of Common Interest, prepare and prescribe a national electricity policy for development of power markets. तो नेपरा के एक्ट के अंदर जो है ना माइनर सी अमेंडमेंट की जाएगी। Provided that in the development of policy under this section, the federal government may seek such input and assistance from the authority as may be required. Next, NEPRA Act amendments 2018 and competitive market में आप देखें तो इसका section 14A है National Electricity Plan and Plan, sub section 2
The policy referred to in subsection 1 shall provide for इसमें आप देखें तो A है development of system based on optimum utilization of resources. तो ऑप्टिमाइजेशन इसमें जो है ना वो मेजर होगी. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड लिक्विड पावर मार्केट डिजाइन होगा आपका. इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल ट्रांसमिशन सिस्टम. तो इसमें पहले तो आपका सिर्फ नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम था एनटीपीसी लेवल पे, लेकिन इस मार्केट के बाद जो है प्रोविजनल ट्रांसमिशन सिस्टम जो एनटीडीसी के बाद आपको डिस्कोज हैं 132 पे जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे. स्पेशल प्रोविजंस for ensuring the development of sustainable renewable energy. तो sustainable renewable energy आपको मिलेगी. Any other matter pertaining to development, reform, improvement and sustainability of power sector. Next. NEPRA Act with amendments 2018 and competitive markets. बैलेंस में आप देखें तो सेक्शन 32 इन्वेस्टमेंट एंड पावर एक्विजिशन प्रोग्राम. उससे पहले नंबर पे देखें तो अथॉरिटी शैल गिव 18 months from the commencement of this act specify procedures and standards for the authority prior approval of the transmission companies. 18 months के अंदर जो है ना उसने ये अपना फ्रेमवर्क मुकम्मल करना है. Any procedures specified by the authority under this section shall advance the goal of minimizing regulatory. उसके बाद है any investment program or power acquisition program है 4 पे upon the authority approval of an investment program है. तो लास्ट वन पे जो है ना ये आप देखें नेक्स्ट. तो जो है ना ये जो नेपरा एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हैं इसको जो है ना ग्राफिकली जो है ना वो दिखाया गया है. पावर प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट सेक्टर को आप देखें तो आपका आईपी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में आप देखें तो आपकी एनर्जी फोरकास्टिंग है. तो एनर्जी फोरकास्टिंग होगी डिस्कोज लेवल पे. नेशनल एनर्जी पॉलिसी आपकी होगी. मार्केट डेवलपमेंट्स होंगी. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होगी. इसके अंदर मीडियम टर्म फोरकास्ट होगी. उसके बाद आप देखें तो सेक्शन 32 नेपरा एक्ट के अंदर जो है ना वो अमेंडमेंट्स होंगी. उसके बाद आप देखें तो आईएए प्रोक्योरमेंट प्लान. उसके बाद आपके जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मार्केट्स हैं. उसके बाद ग्रीन पे आप देखें तो आपके सप्लायर्स हैं एलिजिबल कस्टमर्स हैं. उसके बाद बैलेंसिंग मैकेनिज्म है. तो लास्ट मंथ पे जो है ना जो होगा आपका जो कंपटीशन होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो वो जो है ना वो वेरी फ्रूटफुल होगा. प्रोवाइड्स लीस्ट कास्ट जनरेशन में और लीस्ट कास्ट पावर परचेजिंग में जो है ना तो जो कंज्यूमर एंड पे जो है ना वो उसका सबसे बड़ा जो है ना फायदा होगा. लास्ट वन पे मैं जो है ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ फिजिकली मौजूद हैं और जो इसको ऑनलाइन जो है ना सुनने हैं उनका मैं जो है ना दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये जो है ना टाइम निकाल के इस लेक्चर को अटेंड किया है. और लास्ट मंथ में अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसके लिए रेडी. जी ये जी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप उनको और हैवी किसी को बोलना है कि आपने ये मीटिंग आपने आर्टिकल दिया है तो आप और हैवी कर रहे हैं जो कि हमारा मैं आपको गारंटी करता हूं कि गुजरने के बाद और पूरी लाभ खराब होगी. देखेंगे बजाय कि इसके बैकवर्ड करें कि आप इसको तो स्ट्रेंथन करें इंडिपेंडेंट करें और ऑप्टिमाइज करें. जब तक ये या नेपरा एक्सेट्रा इन्वॉल्व रहेगी हर बोर्ड में हर स्टेज पे नथिंग विल हैपन. आपको मैं दिखा देता हूं आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्कोर्स एक और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग. आपकी डिस्कोर्स मेरे हिसाब से तो पढ़ना बैठ चुका है. लगेगा काम नहीं को करना चाहता कर सकता है. मैं आपको मिसाल देता हूं और नेपरा अपने रूल पास किए हुए अपने फैसले पास किए
15 दिन पहले आपके घर डिलीवर होता था। अब याद होगा आपको, तो पहले 15 दिन होता था। ऑल दी डिस्कोर्स और ये अप्रोच की के लिए हमें एक हफ्ता पहले किया करें, 15 दिन बहुत पहले है, बहुत ज्यादा है। ये आपके भी नोटिस में है जी बिल्कुल जो है ना कि अब प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, वो जो है 7 दिन वाला काम किया है, हमें 3 दिन पहले हमारे घरों में बिल देने जाते हैं और जहाँ पे पता लगता है कि 1 दिन के बाद हफ्ते द्वार की 2 छुट्टियां भी है, मंडे को लास्ट डेट है या खुला है। तो ये बजाय अब वो जो है मैं आपको बता दूं ना, इसकी गारंटी आपको एक सारे प्लान की और मैं आज कर देता हूँ कि आप बिल्कुल डेफिनेटली जहाँ पहले फेल हो चुके हैं आप मजीद फेल होकर फंसेंगे। आपने सारी चीजें बताई है, आपने एक्सटर्नल फैक्टर इम्पैक्ट कहीं नहीं आया, दैट इज ऑफ आईएमएफ बहुत डेट करके अभी आईएमएफ मार्च में एक और इंक्रीज आ रही है। मैंने जब अप्रूवल लेने आए थे मैंने कहा मैंने नहीं बोली जरा मुझे चाहिए हमारा तो मॉडल ही दूसरे चल रहे हैं। इन हालात में के हमारे हाथ बंधे हुए और हमारी आप कह रहे हैं कंपटीशन वाले, आपने अभी तक लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि फलान जिसको से मुझे सस्ती बिजली मिलेगी, जिसको जिस लॉ का पास किए हुए 20 साल हो गए और नेपरा ने पास किया, आपने कमिटमेंट की हुई है सारे, जिसको कोई एक ने इंप्लीमेंट करते आप काम करने को हम तैयार नहीं है। जो फैसिलिटेशन अच्छा ऐसे है कि जो है ना मैं आपको गुजारिश करूंगा इन शॉर्ट कि आप इस पेपर को रिव्यू करें, एक साइड पर रखिए, ट्रक की बत्ती के पीछे हमें ना लगाएं। सेकंड ये है आप इंडिपेंडेंटली 2-4 बंदे इकट्ठे करके जो भी है इनफैक्ट इनपुट लें कि एग्जिस्टिंग हालात में कैसे जा सकते हैं। एक डिस्कोर्स को वीक करके हमने फंसी करके फारक कर दिया ना, काम करना काम होता है और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो लूट मार भी इसका फिर साइड इफेक्ट निकलता है, लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मेरा नाम ऊपर सुनने वाला ना अपना नहीं करने वाला है। तो ये मैं आपको गुजारिश करूंगा आप काइंडली आप सभी ये कोई चीजें भी है तो इसके पैरेलल एक और अप्रोच बनाए और उसको लाए। ये तो सारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं पड़ी होगी कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे और करना उन्होंने। लेकिन भी जो है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि इस सारे लेक्चर में आपने देखे तो जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल है वो किसी जगह नहीं है। तो ऑनलाइन ये क्वेश्चन आया है व्हाई नॉट जो है ना, मैं खुद जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर रजिस्टर्ड हूँ, कंसल्टिंग इंजीनियर भी हूँ और इसके अलावा जो है ना जो उनकी जो इंजीनियर्स की टीम है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनको जो इवैल्यूएट करते हैं उसका इवैल्यूएटर भी हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर से। तो बिल्कुल व्हाई नॉट आई थिंक जो है ना ये पीसी को भी इस सारे मैकेनिज्म में जो है ना वो लेना चाहिए और पीसी के अंदर जो है ना स्पेशल इसके लिए एक सेक्शन बना हुआ है पीसी का जो थिंक टैंक है उनके अंदर इन चीजों के ऊपर जो है ना डिबेट होना चाहिए। ये जो लेक्चर मैंने आज आपको ऑनलाइन दिया है ये लेक्चर जो है ना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके जो नुमाइंदे हैं जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंपनी की तरफ से जो है ना लम्स को पे करके ये लेक्चर जो है ना ये लिया है, ये चीजें ली हैं और मैं इस लिहाज से फर्स्ट पर्सन हूँ कि जो मैंने इन चीजों को जो है ना नेट से और कुछ आगे पीछे से लेके जो है ना एक लेक्चर पब्लिकली जो है ना इसके ऊपर दिया है। तो मैं जो है ना बिल्कुल कहता हूँ कि इन चीजों के ऊपर जो है ना ये पब्लिकली हियरिंग होनी चाहिए, पब्लिकली इस पे डिबेट होना चाहिए और इसके लिए पीसी से जो है ना बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं। थैंक यू। बिल्कुल और लास्ट वन पे आप देखें तो मैं आई एम आल्सो अप्रिशिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान
जो कि पाइनियर इंस्टीट्यूट है इंजीनियर्स का, तो माशाल्लाह जो है ना इसमें जितने तो इस इदारे को भी जो है ना वो इन लाइन लेना चाहिए इस होल प्रोसेस में। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, बात ये कि सर बीच में एक बात रही कि हमने पाकिस्तान से जी जी और वो किसी वजह से नहीं हो सकी उस वक्त क्वेश्चन सर मेरे एनी रीजन पॉलिटिकल होगी उसमें किसी रीजन होगा तो वो हम इम्पोर्ट नहीं कर पाए। अब आपने फरमाया कि हम इस काबिल हैं कि अब हम वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि ये ऐसा क्या हो गया क्योंकि बीच के पाकिस्तानी को रेट जो है वो बहुत इसी ट्रेंड में चले गए हायर साइड पे, तो ऐसा क्या हो गया कि हम जब उनसे इंपोर्ट कर रहे थे तो किस रेट पे दे रहे थे, अब अगर हम उन्हें एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या वो जो रेट से हम इंपोर्ट करना चाह रहे थे उस कॉस्ट से हम कम उन्हें दे रहे हैं जो वो इस मतलब मान गए कि जी आप हमें अब एक्सपोर्ट कर दें। जी ये वायनाड मैंने ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो करंटली जो है ना बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो पाकिस्तान के पास जो है ना 65,000 मेगावाट का हाइडल पोटेंशियल, 65,000 मेगावाट जो है ना वो बिजली आप सिर्फ पानी से जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें अभी आप देखें तो आपके पास जो आपकी पावर मार्केट है उसमें जो हाइडल की कंट्रीब्यूशन है वो जो है ना वो 20% से भी लेस है। तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना वो थर्मल पावर की है। तो थर्मल पावर में भी आप देखें तो उनके अंदर जो आईपीपीज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वो महंगी बिजली जो है ना वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और वो पाकिस्तान ले रहा है क्योंकि ये जो है ना आज से काफी अर्सा पहले ये जो एग्रीमेंट्स हुए थे उनको जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कैरी ऑन जो है ना वो करने पे मजबूर है। अगर नहीं करती तो वो जो है ना वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस में जो है ना वो चले जाते हैं। तो उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान ने बास केसेस में विन किया है, बास में जो है ना वो पाकिस्तान हार भी गया है। तो सबसे पहले जो है ना जो सबसे लीस्ट या सबसे जो सस्ती बिजली है वो हाइडल पावर है और उसकी अभी भी जो जनरेशन की कास्ट है वो 1 रुपए से कम है। तो चूंकि हाइडल आपके सिस्टम में जो है ना वो उस तरह नहीं है एनर्जी मिक्स में जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन अभी आप देखें तो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना वो हाइडल पे काम शुरू किया हुआ है और तेज काम शुरू किया हुआ है। ये काम आज से 15-20 साल पहले करने वाला था जो अभी जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो है ना दूसरा इन्होंने कहा कि अब जो मैंने कासा 1000 का बताया था तो वो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना जो पावर की जो जनरेशन कैपेसिटी थी वो उस वक्त भी एनफ थी, लेकिन आपके कुछ जो जनरेशन थी जो पावर प्लांट्स हैं वो उनके साथ जो आपके पावर परचेज के जो है एग्रीमेंट्स थे वो रिन्यूइंग थे। इसके अलावा उनकी शटडाउन, उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और बाकी ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो अवेलेबल जनरेशन या जो पूल में आपके पास जनरेशन जो आपका रनिंग लोड है उसको वो कॉप कर दी थी, लेकिन आपकी डिमांड जो समर के अंदर आती है आपका लोड बढ़ जाता है उसको आप कॉप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें थर्मल का जो है ना वो मेजर कंट्रीब्यूशन था और थर्मल जो है ना वो मांगे बिजली के दाम जो है ना वो ले रहे हैं। इस वजह से जो है ना वो महंगी बिजली जो है ना वो हम लोग खरीदने पे मजबूर हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है तो इन की जो एनर्जी मिक्स कंट्रीब्यूशन है वो आपको फ्यूचर के अंदर जो है ना जो आपकी हाइडल जनरेशन है, जो आपकी विंड है, रिन्यूएबल है, इसको आपने ज्यादा करना है और थर्मल को आप कम करेंगे
तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि हम बाबा- पाकिस्तान को अब जब हम एक्सपोर्ट तब करेंगे जब हमारी आइडल वो इंक्रीज हो जाएगी। नहीं जी, अभी जो प्लांट भाई मेरी बात सुनो भाई, सवाल आपका करना हक है, इनका जवाब देना फर्ज है, लेकिन जब आप सवाल कर लें ये जवाब दे दें, दैट इज इट। क्रॉस क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम we have to be precise. We have to. This session is not timeless. There should be end to it. He has spoken already 1.5 hours, and you are putting question and again question within the question. Please, with one person, one man, and that should be enough. And I think the lecture is now over. Let me tell you. There is always a way to conduct a session. There is always a way to put the questions. There is always a way for the speaker to acknowledge. As a matter of fact, I am a civil engineer. Usually, I didn't know that this aspect is going to be discussed. Electricity, as he has told us, is going to be as civil contracts. We purchase contracts, there are contractors, there are rules, regulations, and we sell the contract. So it is going to be the same, I think. And if it is going to be the same, then there is third agencies to be introduced. One is the producer of the electricity, the second is the purchaser, the third is the distributor. The entire HR expenses, human resource expenses, are going to be borne by us. My friend is right, Masood Sahib is right, we are going to complicate the issue. It should be as simple as possible. Previously, when WAPDA came into being, he thought that WAPDA is the only authority in the country which produces the electricity and which distributes it, and the rates were minimum, within the control. Now I have understood that why the rates are going high. I think these rates are not within the control of the government of Pakistan. It is something beyond government of Pakistan. Why they should be allowed to, create a thermal power station and then purchase the power by some agency, and then WAPDA should distribute it. Sir, it is going to be a complicated system. It is going to increase human cost. But number two, the agreements. From the very beginning, when we started engineering in 1964, way back, I have got 60 years experience. My colleagues are sitting here. We are constructing the contracts agreement. We are executing them under a bilateral agreement. One party is contractor always, the other is the government, or the owner of the contract. So this is nothing new in it. Today, this is international tradition of contract agreements. Lisa, Ashwat, you understand me? Yeah. FIDIC, it controls civil projects, FIDIC controls the electric projects, and it controls mechanical as well as the small environmental entities. So, FIDIC, I think, is the international forum on which Pakistan government has already agreed. All the civil projects which are international, say NHA, all the contract agreements which are executed by WAPDA, they are controlled and governed by FIDIC. There is a provision. My friend said that when there is a mutual agreement, there is no need of arbitration. No, sir. There is always a need of arbitration. FIDIC, it's a two-way agreement. Contractor has got the same right as the owner, but there is a provision of arbitration. I myself have been arbitrators on many projects. So I think Masood Sahib is very right. I request Masood Sahib, he is an electrical engineer. He should be the lecture. He should deliver it here, and we understand his language. आपने कहा कि हम बिजली या तो खरीद रहे थे या एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में. What has happened overnight? There was blackout hours and hours. Just 4 years back. In Lahore, I am talking of Lahore, which is capital city of Pakistan, one of the capital cities. 1 hour was for electricity, 1 hour was for blackout. So we were so short in electricity.
that we are purchasing either from Iran, from that, we have been reading the news, and no contract could survive, no contract could be successful. Now, I don't think that something has happened, that we are going to sell the electricity. It is, abhi bhi, Lahore mein load shedding hoti. And when we are having load shedding in Lahore, in Karachi, in Islamabad, then why is the need selling the electricity? वो एग्रीमेंट क्यों नहीं पूरा हुआ? इसलिए कि वो जो हमारे दोस्त थे पाकिस्तान और ये जो है ईरान की, they mind their own business. They don't want to help us. The rate of supply was so high that if Pakistan government would have purchased that electricity, it would have been so high a rate for public, for us, for the end user. The government of Pakistan बदनाम हो जाती. यहाँ तो सबसे बढ़ जाती है बिल्कुल सुपर. यहाँ तो अभी भी जनाब तकरीबन in a year, the current year, there has been 5 times increase. Am I correct or not? There has been 5 times increase. The electricity which was given to us on, say, 7 or 8 rupees per unit, now it is 24, 25 rupees per unit. And over and above, GST. Now it has been related to the income tax statement. But it is happening. So that's next time kindly prepare a lecture which solves our problem. You have to guide us and if it is possible, you have to send your recommendations to the government of Pakistan to minimize the public problems. Actually, the state should be a welfare state, and welfare state is one where public is lives with an easy mind. And that is it. I thank you very much. I thank you, Ijaz. There is no doubt that lecture have been prepared with great love and depth. So we are all grateful. And I think Asif कुछ है वो कहते हैं कुछ काम करने के लिए कुछ करना पड़ता है. आपको चाहे करने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी. And I request all of you कि ये पैसा हमारे पास अमानत है. आप इसके अगर हमने गाइड किया है आप लोगों को do not let it go waste. Please do not let it go waste. Go up, there is a lift, and go. Young people like him, and you are all good. Thank you very much. Thank you very much.